یہ ثبوت ہے میرے پاس جو آج تک میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ 2017 میں میری ان کی دوستی ہوئی اور انہوں نے ایک پروگرام کا ارینج کیا، اس کے اندر انہوں نے میرا جو نام دیا تھا تعاون کے اندر کہ خاص تعاون جو ہے مبشر سیمسنگ ریاست کا خاص تعاون ہے، اور یہ میرے پاس پروف ہے اور یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ 2017 سے میری ان کی دوستی ہے اور خدا نے آج تک ہماری دوستی کو قائم رکھا ہے۔ ہلیلویا۔ تو میں آپ کی پرزور تالیوں میں خدا کے قادر کو دعوت دیتا ہوں آئے اور خدا کے کلام کو ہم سب کے لیے شیئر کریں۔ ویلکم ٹو سر، شیئر دا میسج۔ جلالی اور بابا کے نام میں آپ تمام کو سلام، آپ تمام کو سلام۔ خدا نے آپ سب کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ آئیں خدا کے جلال کے لیے زوردار کریں۔ خدا کا مسئلہ، خدا کی حضوری ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور جب ہم اس کو دل و جان سے پکارتے ہیں، جب اس کی پرستش کرتے ہیں پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری قوت، پوری طاقت کے ساتھ جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں تو اس کا تب ہمارے درمیان میں واقع ہے۔ سب سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ ممکن کیا کہ آج آپ کے درمیان میں آؤں اور کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ اس کے بعد میں اپنے پیارے بھائی اور پیارے دوست مبشر سیمسن کا اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمیں یہاں پر دعوت دی تاکہ ہم دونوں خادم یہاں پر آئیں اور مل کر خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھ سکیں۔ ہلیلویا، 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 پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ بے شک جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خدا کا مسئلہ، خدا کی حضوری ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے اور خدا کا تخت ہمارے درمیان میں لگ جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح ایک انسان کے لیے طوفانوں میں سے ہو کر گزرے تھے۔ کہاں پر گئے تھے؟ گریسینیا پر لاتا۔ وہاں پر کتنے لوگوں کو بچایا گیا؟ صرف ایک انسان، ایک آدمی۔ جب یسوع مسیح کے انسان کے لیے طوفانوں میں سے گزر کر جا سکتے ہیں تو ہماری کیا ہے؟ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کا پیار ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ ایک ایسی تاثیر ہے جو ایمانداروں کے اوپر بھی بڑے زور سے اثر کرتی ہے، اور جو ایماندار نہیں ہیں ان کے اوپر بھی وہ تاثیر بڑے زور سے اثر کرتی ہے اور اٹیک کرتی ہے۔ جو ایماندار ہے، جو چنے ہوئے ہیں، جو الگ کیے ہوئے ہیں، جو مسح کیے ہوئے ہیں، اور جن کو خداوند زندہ پاک خدا نے چنا ہے، الگ کیا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے۔ وہ مقصد جو خداوند زندہ پاک خدا کا مقصد آپ کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ہے، جو اس کے چنے ہوئے ہیں، جو اس کے الگ کیے ہوئے ہیں۔ خداوند زندہ پاک خدا کے پاس ان کے لیے ایک خاص پلان اور خاص مقصد ہے۔ وہ تاثیر ان کے اوپر بھی اثر کرتی ہے اور بڑے زور سے اثر کرتی ہے، اور وہ تاثیر یہ چاہتی ہے کہ ایماندار کمزور ہو، ایماندار گر پڑے، ایماندار اس نشان کی طرف، جس نشان کی طرف وہ دوڑا چلا جاتا ہے، اس نشان سے ہٹ جائے۔ لیکن جو ایماندار ہوتے ہیں، جو چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو مسح کیے ہوتے ہیں، وہ اپنے نشان سے کبھی بھی ہٹتے نہیں، بلکہ وہ دوڑے چلے جاتے ہیں، دوڑے چلے جاتے ہیں، اور وہ نعمتیں، وہ برکتیں جو خداوند زندہ پاک خدا نے ان کے لیے رکھ چھوڑی ہوتی ہیں، وہ برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ لیکن یہاں پر بھی خدا بڑے بڑے آنے والے دنوں میں کام کرے۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ شکر کتنے تھے؟ ٹوٹلی 12 پوری دنیا میں انہوں نے تہلکہ مچا دیا، اور آج پوری دنیا میں خدا کے کلام کا پرچار کیا، اور یقیناً کلام زندہ پاک خدا ایسا نہیں ہے۔ کلام زندہ پاک خدا برکت دے گا۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑی چیز ہوتی ہے،
जब थोड़ी चीज होती है, जब वो बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? रमज़दा पाक खुदा यहाँ पर भी आने वाले दिनों में ऐसा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord। आए उस तस्वीर के बारे में सीखते हैं जो ईमानदारों के ऊपर भी अटैक करती है और जो ईमानदार नहीं है उनके ऊपर भी अटैक। मेरे ऊपर बहुत मरतबा अटैक किया, लेकिन जब आप खुदा के हाथों में होते हैं, जब आप खुदा की निगाह में होते हैं, जब खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबे में होते हैं, तो वो तस्वीर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं ज़बूर 34 और उसकी 19वीं आयत। ज़बूर 34 बड़ी मशहूर आयत है बाइबल मुकद्दस की, बड़ी मशहूर आयत है, कोई पढ़ने में रहनुमाई करे। जी राम के कलाम में इस तरह लिखा है, शादी की मुसीबतें बहुत हैं, आमीन, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। आमीन। लिखा है सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। सादिक किसको कहते हैं जी? जो ईमानदार होता है, जो चुना हुआ था, जो वज़ा किया होता है, जो खुदा की नज़ीर होता है, जो खुदा का चुना होता है, जिसको खुदा जिंदा पाक खुदा ने अलग किया होता है अपने काम के लिए। लिखा है सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, थोड़ी नहीं है जी। कोई शख्स, कोई बहन या कोई भाई अपने जहन में ये बात ना रखे कि अगरचे उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, यीशु मसीह के पास आ गया है, तो उसके लिए मुसीबतें खत्म हो गई। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। लिखा है सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदा उनमें से उनको निकालने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन। जो सादिक होते हैं, जो चुने होते हैं, उनकी मुसीबतें बहुत होती हैं जी, मुसीबतें बहुत होती हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, कोई बीमारी अटैक करती है, तो बनी इस्राएल कौम की तरह बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपनी जिंदगी में बुड़बुड़ाना खत्म कर दें। अपनी जिंदगी में खुदा के साथ गिला करना खत्म कर दें। अगर आप यह चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आपके वसीला से बतेरे लोग शफा पाए, बतेरे लोग तब्दील हों और उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हों, तो गिला करना छोड़ दें। जब आप गिला करना छोड़ देंगे, शिकायत करना छोड़ देंगे, तो खुदा खुदा आपको बरकत पर बरकत देना शुरू कर देगा। और इस्राएल कौम के ऊपर मुसीबत आई और उनका 40 दिन का सफर कितने दिनों का हो गया? 40 साल का हो गया, 40 साल का। अगरचे आप सादिक हैं, आप चुने हुए हैं, आप अलग किए हुए हैं, आप मज़ा किए हुए हैं, तो मुसीबतें आपके ऊपर आएंगी और इब्लीस आपके ऊपर अटैक लाजमी करेगा, चाहे बीमारी की सूरत में, चाहे रुपए पैसे की सूरत में, चाहे घर बार की सूरत में, चाहे औलाद की सूरत में, चाहे आप जहां पर खिदमत कर रहे हैं, आपकी खिदमत के आगे बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें भी आएंगी, बड़ी मुश्किलों का पहाड़ भी खड़े होंगे। लेकिन अगर आप खुदा के हाथों में हैं, आप खुदा की निगाह में हैं, तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। हालेलुया, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। वो पहाड़ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप खुदा के साथ चलते जाएंगे, आप खुदा के साथ कायम और दायम रहेंगे, तो खुदा आपको बढ़ाता चला जाएगा। बहन जब यहाँ पे खड़ी हुई थी तो मुझे अपना एक वक्त याद आया। मैं अपने चर्च में पता क्या करता था? मैं वो काम करता था जिस काम से लोग भागते हैं, और आज उसी चर्च में खुदा जिंदा पाक खुदा ने मुझे ऐसा खादम कर दिया। मैं अपने चर्च में सबसे पीछे बैठ के लोगों के जूते उठा के सीधे किया करता, और मैं अपनी गुआहियां बताते हुए कभी भी शर्माता नहीं हूं, क्योंकि
जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने अंदर क्या रखता है? गवाही रखता है। और जब आप गवाही देंगे तो खुदा जिंदा पाक खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाएगा और खुदा आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। सादिक की मुसीबतें बहुत है मेरे अजीज बहनों और भाइयों। अगरचे आपके ऊपर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो घबराइएगा नहीं। मेरे ऊपर बेशुमार मुसीबतें। एक ऐसी मुसीबत आई मेरे ऑफिस में, सब मेरे ऑफिस में भी जा चुके हैं। मेरे ऑफिस में एक मेरा दोस्त टी बैग्स लेकर आया, बाहर की चाय लेकर आया। वो चाय हमने बड़े खुशी खुशी बनाई और पी, एक पी, दूसरी चाय पी, और जब दूसरी चाय पी हम ऑफिस में 3 बंदे उस वक्त बैठे। सबसे पहले मेरे कुलीग के पेट में दर्द होनी शुरू हुई, और जब दर्द होने शुरू हुई तो उसका यूरिन बंद हो गया, वो रोना चढ़ाना उसने शुरू कर दिया। उसको उठाया सीधा हॉस्पिटल में। उसके 10 से 15 मिनट के बाद क्या हुआ जी, हमारा जो प्यून था उसके अंदर से ब्लड आना शुरू हुआ। उसने ऐसे नीचे उठेगी और पूरा फर्श ब्लड से भर गया और एकदम से मैं रोना शुरू हुआ। मेरे को उसने आवाज दी, सर सर ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ। जब देखा तो उसका मुंह सारा गल गया अंदर से, ब्लड आने शुरू। उसको भी फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद क्या मुसीबत। तीसरा मैं बचा था और मैंने भी वो टी बैग्स लिए। जब मैंने वो चाय पी थी तो वो मुसीबत मेरे ऊपर भी आई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ कि जो कुछ मैं खा रहा वो सब ऐसे एकदम से मेरे अंदर से खारिज होना शुरू। मैं अपने घर में बड़ी मुश्किल से पहुंचा। जब मैं डॉक्टर के पास गया, उसने चेकअप किया तो उसने कुछ मेडिसिन दिए और वो रात मैंने बड़ी अजियत की रात काटी, बड़ी अजियत की रात। जब मॉर्निंग में डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरे को पता क्या खबर दी। उसने बोला जी आप गुर्दों से फारग हो गए, आपके गुर्दे फिनिश, आप सीधा डायलिसिस पे जाए। तो जब उसने ये बताया मैं खामोशी के साथ जब घर पे आया हूँ और घर पे लेटा हूँ और उसके 1-1.5 घंटे के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ कि मेरे नीचे का हिस्सा बिल्कुल पहुंच मेरी टांगें की काम कर। मैंने बड़ी अपनी टांगों को हिलाने की कोशिश की, बड़ी कोशिश, ऐसा जैसे नीचे मेरे साथ मेरा वजूद है। मैंने बड़ी कोशिश, मैंने फ़ौरन अपनी वाइफ को बात की, अपने बच्चों को बात की, बोला जल्दी से इस कमरे में मेरे पास है, दुआ करना शुरू कर। हम लोगों ने दुआ करना शुरू कर दिया और मैं भी आंसू बहा बहा के खुदा का शुक्र अदा करना शुरू। बाइबल में लिखा ना हर एक बात में क्या करो, खुदा शुक्रगुजारी करो, क्योंकि यीशु मसीह की इबादत तुम्हारे लिए खुदा की यही मर्जी है। खुदा की मर्जी उस मुसीबत में मैं खुदा की मर्जी पूरा करना शुरू हो गया। और जब मैं खुदा की मर्जी पूरा कर रहा था तो उस ही लम्हे आधे घंटे के अंदर अंदर एक जबरदस्त किस्म का मसा आया, एक रोशनी आई सीधा मेरे माथे और जैसे माथे पर टकराई और मेरा पूरा बदन से गुजरी है। और जब वो कुव्वत, वो मसा, वो जुरी खुदा की मेरे बदन से गुजरी है तो दम से मेरे बदन में जाना और मैंने खड़ा हो गया। मैं खुदा की सताइश करना शुरू कर। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगरचे आप खिदमत में हैं, अगरचे आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो आपके ऊपर मुसीबतें लाजिम आएंगी। गुनहगार के ऊपर जो मुसीबत आती है उसका एक अलग है, और ईमानदार के ऊपर जो मुसीबत आती है, खुदा जिंदा पाक खुदा ने ईमानदारों के साथ, सादिकों के साथ वादा किया है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदा उनमें से उनको निकालने की कुदरत रखता है। खुदा कभी भी आपको मुसीबत में नहीं रहने देगा। खुदा आपको आपकी बीमारियों से निकाल लेगा, खुदा आपको आपकी मुश्किलातों से निकाल लेगा, खुदा आपको उन लानतों से निकालने की कुदरत रखता है जो बाप दादा से पीछा कर दिया। खुदा आपको कभी भी मुश्किल में नहीं रहने देगा। एक खानदान में गया, फैमिली में मैं गया, उनके यहाँ उनके बहू के यहाँ औलाद नहीं हुई, 9 साल हो गए शादी, औलाद नहीं हुई। उन्होंने बड़ा पास साहब हमारी बहू का
औलाद नहीं होती है और अब्लीस, खानदानी अब्लीस के पीछे लगा हुआ है, खानदान से 6 से 7 महीने के बाद बच्चा गायब हो जाता है, अब्लीस चुरा के ले जाता है। और वो लोग इतने परेशान थे, वो कहते थे कि हम किसी को बाहर अपने रिश्तेदार को मुंह दिखाने के काबिल। ये हमारे साथ 9 साल से ऐसा हो रहा था। जब उस बेटी के लिए मैंने दुआ की, खुदा जिंदा पाक खुदा ने मुझे बता दिया कि इसके बाप दादा जो थे वो बुत प्रस्त कौम से ताल्लुक रखते थे और बुत प्रस्ती करते थे और अपने बच्चों की बलियां चढ़ाते थे बुतों के आगे, अपने बच्चों को ज़िबा करते थे। और खुदा ने मेरे को बताया कि ये वही बुदरू हैं, इसका बच्चा चुरा के ले जाती है और कुर्बान। तो मैंने आके बोली, मैंने एकदम उस बेटी को बोला, मैंने बोला बेटा आंखें खोलो, बोला आपके माँ बाप क्या करते हैं? तो फिर वो चढ़ जाते हैं, दुआ करते हैं। मैंने बोला जादूगरों के पास भी जाते हैं? कि नहीं पास ऐसा। अच्छा, मैंने बोला बेटा आप अपने बाप दादा दादा जो हैं, आपके माँ बाप के जो माँ बाप हैं, उनके दादा परदादा हैं, आप उनके बारे में जानती? बोलती नहीं पास मैंने बोला बेटा आपके दादा परदादा जो थे बुतों की पूजा करते हैं और मेरा नेक्स्ट जो विजिट होगा आप अपने माँ बाप से फिर आप मेरे को बताना, फिर मैं आपके लिए प्रे करूँगा। जब नेक्स्ट मैंने विजिट किया 2-3 दिन के बाद उस बेटी ने जब पूछा तो बोलती है हाँ हमारे दादा परदादा जो थे वो बुत प्रस्त कौम से ताल्लुक रखते थे। और फिर मैंने उसको बताया कि बेटा आपके दादा परदादा ये काम करते थे और वो ही बदरू हैं, आपका पीछा करती थी और आपको बच्चा चुरा के। और अब खुदा जिंदा पाक खुदा आपको इस मुसीबत से निकालेगा, क्योंकि वो रिहाई आपको देगा। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर क्या देता है? शिफा देता है। और खुदा आपको शिफा देगा, खुदा आपको इस मुसीबत से निकालेगा। एकदम से उसका चेहरा खिल गया और वो रोना शुरू किया, बोलते बस साहब हम जल्दी से दुआ करें और मैं माँ बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख़ानदान में बहुत सारी बातें हो रही हैं और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, तलाक तक पहुँच चुकी है और मेरा घर बर्बाद। मैंने उसको सर पे हाथ रखा, मैंने बोला बेटा आने वाले दिन में खुदा आपको खूबसूरत से बोला। जब उसके ऊपर दुआ की तो हम कर देंगे और वो जो तस्वीरें, वो जो बुदरू हैं, उसका बच्चा चुरा के ले जाए, उसको बदन से निकले और छोड़ता बाहर। और उसके बाद खुदा जिंदाबाद होगा, उसको खूबसूरत बेटा। हालेलुया। खुदा मुसीबतों में से आजाद करता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। सादिक सिर्फ नाम के सादिक नहीं, काम के भी सादिक है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सादिक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, चुना हुआ होना चाहिए। ज़बूर 107 और उसकी 19वीं आयत देखें जरा, क्या लिखा है उसमें? ज़बूर 107 और उसकी 19वीं आयत। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं। लिखे तब वो अपनी मुसीबत में, कौन? जो चुने हुए हैं, जो अलग किए हुए हैं, जो मसा किए हुए हैं, जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो वो लश्करों के पाक रब से क्या करते हैं? फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं और उसके हुजूर में झुकते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जाहिर करते हैं कि हम चुने हुए हैं, हम अलग किए हुए हैं, और खुदा के घर में आते हैं और बड़े जोर से प्रस्तिश भी करते हैं, तालियां भी बजाते हैं और दुआएं भी करते हैं, लेकिन चाल जो होती है ठीक नहीं होती। उनकी चाल ठीक नहीं होती, उनकी चाल ज़िगज़ैग चाल होती है। और ज़िगज़ैग चाल किसकी होती है जी? सांप की। सांप जब अपनी बिल में जाता है, यानी अपने घर में जाता है, तो कैसे जाता है? बिल्कुल सीधा। ऐसे ही वो नामी मसीही हैं
जब जब वो खुदा के घर में आते हैं तो बड़े सीधे हो जाते हैं, बड़े रूहानी बन जाते हैं कि हमारे से ज्यादा रूहानी या मस्सा जितना हमारे ऊपर है उतना किसी के ऊपर नहीं। जितना हम जो से प्रस्तिश करते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम सुनाते हैं, हमारे से कोई अच्छा है ही नहीं। लेकिन अगर बाहर की आप उनकी चाल देखें तो जिगजैग चाल है, और जिगजैग चाल किसकी है? सांप। उनकी चाल, उनका चाल चलन, उनका उठना बैठना खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। और जब जब वो मुश्किल में पड़ते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं, तो वो पड़े ही रहते हैं और वो छूटते नहीं। वो जिंदगी, पूरी जिंदगी इब्लीस के हाथों से मार ही खाते रहते हैं, दुख में ही अपनी जिंदगी को गुजारते हैं और इस ही हालत में कब्र में चले जाते हैं। मेरे अजीज बहनों, आप बहुत अच्छे हैं, आप चुने हुए हैं, आप अलग किए हुए हैं, आप मसा किए हुए हैं। आपको खुदावंद जिंदा पाक खुदा ने लाखों करोड़ों अरबों इंसानों में से अलग किया है, चुना है। आपने नहीं चुना, बल्कि खुदा ने आपको चुना। खुदा जिसको चुनता है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ, कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर जब वो सादिक है तो खुदा उनमें से उनको निकालने की क्या रखता है? अगर आप में कोई ऐसा है जो मुश्किल में है, परेशानी में है, दुख में है, तो मेरे बहनों और भाइयों, परेशान नहीं, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते रहे, खुदा की शुक्रगुजारी करें। क्या लिखा था? वो अपनी मुसीबत में क्या करते हैं? मुझसे क्या करते हैं? फरियाद करते हैं। कौन फरियाद करते हैं? जो खुदा के लोग। और आगे क्या लिखा है? आगे और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। आमीन। और वो उनको उनके दुखों से, किन के दुखों से? जो सादिक हैं, जो चुने हुए हैं, जो मस्सा किए हुए हैं, जो खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते हैं ताकि उसके खिलाफ गुनाह न कर सके, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलते हैं, जो खुदा के कलाम को अपनी निगाह में रखते हैं, जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलते हैं, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे परेशानी। बनी इस्राएल को जब मुल्क मिस्र से निकाली गई थी तो एक बड़ी मुश्किल में आकर वो फंस गए। आगे गुलजम आ गया और पीछे क्या आ गया? खोजे आ गए, बीच में फंस गए, बीच में फंस गए, एक बड़ी मुश्किल में आ गए। बिल्कुल इसी तरह ईमानदारों के साथ भी होता है। हमारे अपने ही हमारे पीछे कौन होते हैं? दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन होते हैं, बाहर से नहीं आते, हमारे अपने ही होते हैं। याद रखिएगा, बाहर की बगावत इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अंदर की बगावत खतरनाक है। जो आप अपने आप के दुश्मन बन देते हैं, वो होते हैं आपके अपने ही हैं, लेकिन इब्लीस उनको इस्तेमाल करता है। वो इब्लीस की आवाज़ को सुनते हैं, इब्लीस के प्लान को अपने सोचों में लेते हैं और सोचों में लेकर जब दिल में उतारते हैं और जब उसके ऊपर अमल करते हैं तो वो गुनाह करता है। और गुनाह की मजदूरी फिर क्या होती है? मौत। खुदा से जुदाई क्या है? मौत है। खुदा से जुदाई क्या है? मौत है। और जब वो ऐसा काम करते हैं, दुश्मन हमारा पीछे होता है और आगे गहरे में कुछ भी रास्ता नजर नहीं आता, फिर खुदा कहता है चुपचाप से और जलाल देखो, मेरी कुदरत देखो, नजात का काम देखो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मुसीबतों में से आप गुजरेंगे, परेशानियों में से गुजरेंगे, लेकिन जब जब आप खुदा के हजूर में चुपचाप खड़े रहेंगे और जब उसको पुकारेंगे पूरे दिल और जान से, जैसे दाऊद कहता है मैं अपने पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। जब आप पूरे दिल से उसका शुक्र करना शुरू कर देंगे तो फिर मुसीबतें आपकी मुसीबतें नहीं, फिर ये खुशियों में तब्दील हो। आगे बढ़े, आगे क्या लिखा? 107 तारीख। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर जी उनको शिफा देता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको क्या देता है?
شفا دیتا ہے. اور شفا کے ساتھ ایک اور آگے کام کرتا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ اور ان کو ہاں جی اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. آمین. اور ان کو ان کی ہلاکت سے کیا بخشتا ہے؟ رہائی بخشتا ہے. آپ کو خدا رہائی بخشتا ہے. آپ کو خدا شفا دیتا ہے. اپنا کلام نازل فرما کر. کلام کون ہے؟ یسوع مسیح مجسم کلام. جب یسوع مسیح کو آپ اپنی زندگی میں لے لیں گے, اپنی نگاہ میں لے لیں گے, اپنے دل میں لے لیں گے, اپنے چال چلن میں لے لیں گے, اپنے اٹھنے بیٹھنے میں لے لیں گے, اپنی گفتگو میں لے لیں گے, تو وہ آپ کے لیے شفا کا کام کرے گا. وہ آپ کے لیے رہائی کا کام کرے گا. وہ آپ کے لیے آزادی کا کام کرے گا. اور وہ آپ کو دکھوں میں سے, مصیبتوں میں سے اور لعنتوں میں سے, وہ لعنتیں جو باپ دادا سے آپ کا پیچھا کرتی ہیں, ان لعنتوں میں سے وہ آپ کو کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا. وہ آپ کو رہائی دے گا. آنے والے دنوں میں خدا آپ تمام کو اپنے جلال کے لیے بے شک استعمال کرے گا. مشکلاتیں بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی, بیماریاں بھی اٹیک کریں گی. جب آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوں گے نا, تو آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل اثر نہیں کر سکتی. بس سب کو میں اپنی وہی اندر بیٹھ کے دوبارہ نام چھوڑوں. جب میں نے نجات پائی تو میں نے کس طرح سے نجات پائی, کس طرح سے میں خدا کے حضور میں آیا, خدا کے ساتھ جڑ گیا, کس طرح سے میں نے خدا کو قبول کیا, خدا کی قدرت کو کس طرح سے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا, محسوس کیا. 99 میری زندگی کا ایک بڑا اہم سال. اس سال میں میری شادی ہوئی, اور میری شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے. اور اسی دوران ایک ایسی بیماری نے میرے اوپر اٹیک کیا. اس بیماری کا علاج نہیں, ابھی بھی نہیں ہے. وہ ایسی ایک بیماری تھی, مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے وہ بیماری ہو چکی. میرے ٹیسٹ میں کروائے گئے, اس کے بعد مجھے میڈیسن دیے گئے, اور جب میڈیسن میں نے استعمال کی اور مجھے اور زیادہ مزید تکلیف ہوئی. اور جب وہ ٹیسٹ میں دلوائے گئے تھے, جب میں اپنے میرا فیملی جو ڈاکٹر تھا, جب میں اس کے پاس لے کر گیا, وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بولتا اس سے پہلے تو کام دیتا, کیوں نہیں آیا؟ اگر تیرے کو یہ تکلیف تھی, یہ مرض تھی, مجھے تو نہیں پتا کہ تیرے کو کیا مرض ہے. ہاں, جب میں چلتا بھی ہوں نا, تو پاؤں کی کمر سے درد ہوتی ہے, اور میں اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائی سے, اپنی بیوی سے چھٹے ہو, اتنی تکلیف ہے. اس نے کچھ میڈیسن لکھ کر دیے, اور جب وہ میڈیسن لینے کے لیے میں میڈیکل اسٹور پہ گیا, تو میڈیکل اسٹور والا کہتا ہے کہ یہ میڈیسن بھائی آپ کو یہاں سے نہیں ملے گی. میں نے بولا کیوں بھائی, یہاں سے کیوں نہیں ملے؟ بولتے ہیں یہ میڈیسن آپ کو جنا ہاسپٹل کے اندر جو میڈیکل اسٹور ہیں کہ وہاں سے آپ کو ملے. میں اس سے پوچھ لیا, میں نے بولا کیوں, تو خاص بیماری کی میڈیسن؟ بولتا نا آپ کو نہیں پتا. میں نے بولا نہیں, کچھ نہیں پتا. بولتا بھائی جن کے بدن میں کینسر پھیل جاتا نا, یہ کینسر کی روک تھام کے لیے میڈیسن. اوہو, مجھے پتا چل گیا کہ مجھے تو کینسر ہو گیا. میں وہیں پہ داڑھی مار کے رونا شروع. جب میں رو رہا تھا تو مجھے اس بات کا علم تھا کہ کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں کس طرح سے تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں, اپنی زندگی کے ایام گزارتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جب میں رو رہا تھا, میں آنسو بہا رہا تھا, تو اس بھی لمحے خدا کے مسا نے, خدا کی حضوری نے مجھے چھوا, اور خدا ان سے کہا, خدا نے میرے ساتھ کلام کیا. خدا نے کہا کہ اگر تجھے میں 4 دن کے مردہ لازر کو قبر میں سے نکال کے زندہ کر سکتا ہوں, تو وہ ہے زندہ, اور میں تجھے شفا دوں. تجھے کوئی نہیں تجھے شفا نہیں دے سکتا. میرے عزیز بھائی, وہ جو میں نے میڈیسن لیے ہوتے ہیں, وہ میڈیسن اسی وقت میں نے پھینک دیا. اور جتنے بھی میں نے چیک اپ کروائے, تو اور جو میں نے چیک اپ کروانے کے وہ سب سیدھے وہیں پر میڈیکل اسٹور کے سامنے کھڑے ہوئے ہارٹ. اور میں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا, میں نے کہا خدا اگر میری جان جاتی ہے تو کیا, میں مانتا ہوں کہ مر جاؤں, لیکن آج کے بعد میں میڈیسن استعمال نہیں کروں گا.
مجھے شفا دے گا، مجھے رہائی دے گا، صرف اور صرف تو ہی دے گا۔ اور وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو کیا دیتا ہے، اور اس نے اپنا کلام میرے ساتھ کلام۔ اور جب یہ میں یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا تو میں روڈ پر روتا ہوا جاؤں اور مجھے تمام چیزیں جو ہے نا بے معنی بے فائدہ لگے، بڑی بڑی بلڈنگس، گاڑیاں، یہ وہ، آتے جاتے لوگ، سب بے معنی لگے، کچھ نظر ہی نہیں تھا، روتا ہوا جا رہا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی نئی شادی ہوئی، میرے ماں باپ کے دل میں بڑے ارمان ہیں، میری اولاد کے، میرے اپنے دل میں بڑے ارمان تھے کہ میں خدا کی خدمت کروں گا اور میں اچھا بزنس مین بنوں۔ میں یہ سوچتا جا رہا، لیکن خدا نے میرے کو کہہ دیا تھا کہ تیرے کو شفا میرے عزیز میں کرتا، جب تو میرے 99 میں پاکستان میں آئے، YMC میں 7 دن کا ان کا پروگرام، فرسٹ ٹائم کراچی میں آئے۔ جب ان کی پہلی عبادت ہوئی تو میں نے اشر ساران کو وہاں پہ کام کیا، دریاں بچھائے، جھاڑو لگایا، چیئر لگائی، کسی تکلیف میں، بیماری میں، بڑی درد، لیکن میں نے سارا کام کیا۔ پہلی عبادت میں بے شمار لوگوں کو شفا ملی، مجھے شفا نہیں ملی۔ دوسرا دن ہوا، بہت سارے لوگوں کو شفا ملی، مجھے نہیں ملی۔ جب میں گھر پہ آیا تو وہ پوری رات میں نے اپنا تکیہ آنسوؤں کے ساتھ بھگویا، دوڑ کی طرح۔ اور میں نے خدا کو کہا، خدا کل اپنی بندی کو بولنا کہ سب سے پہلے